Assalamu alaikum. I am Dr. Zahida Parveen, PhD Special Education from University of the Punjab, and I am working as Assistant Professor of Special Education at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This is the course of Teaching of Mathematics to Visually Impaired Children, and this course is from Masters of Special Education with an area of specialization of visual impairment, and the course code is SPED 4137 and with the credit hours of 3. The title of today's lesson is Guided Discovery Method, and in this method we will discuss guided discovery in detail and will go through the advantages and disadvantages of guided discovery method. So now we will talk about guided discovery. Evidence suggests that if the goal is to foster deep conceptual understanding of mathematics, students must be provided with opportunities to develop their own ideas of underlying concepts through exploration. So research हमें ये suggest करती है कि through exploration students should be allowed to explore the things, and we should provide them the opportunities so that they can explore new ideas and they can construct their own thinking and their own concepts. Moreover, research reveals that a reasonable degree of guidance is often more effective than low guidance. जैसे हमने last lecture में discuss किया about direct instruction और expository instructions. In contrary to that, जब हम बात करते हैं guided discovery की, तो research हमें ये suggest करती है कि जो guidance के साथ जब आप instructions provide करते हैं students को, that is more effective as compared to those instructions which are very low guided. तो गाइडेंस के साथ हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए इंस्ट्रक्शंस ताकि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें. Guided discovery is an approach to inquiry-based learning that values both student exploration and direct teaching. The overarching goal of this approach is to foster collaboration and thoughtful interactions with mathematical concepts. सो जो गाइडेड डिस्कवरी होती है वो एक ऐसी अप्रोच है जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के ऊपर बेस करती है, और ये बेसिकली द कॉम्बिनेशन है डायरेक्ट टीचिंग का और एक्सप्लोरेशन का, बिकॉज इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं और प्लस उनको टीचर गाइडेंस भी मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टीचिंग. तो जब ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज गाइडेड डिस्कवरी. और द टर्म गाइडेड डिस्कवरी रेफर्स टू अ टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट where students are actively participating in discovering knowledge. So basically the guided discovery का जो goal है that is discovery of knowledge with the help of direct teaching and exploration by the students. Direct teaching by the teacher and exploration by the students. So guided discovery जो है वो इसकी term जो है उसके meanings भी यही show कर रहे हैं that the students are supposed to discover new things, new topics, new concepts with the provided guidance by the teacher. तो जब गाइडेंस टीचर्स की जो होती है उसको फॉलो करते हुए बच्चे डिस्कवर करते हैं अपने न्यू नॉलेज को, तो दैट फॉर्म ऑफ टीचिंग मेथड इज कॉल्ड एज गाइडेड डिस्कवरी. It is a powerful instructional approach that guides and motivates learners to explore information and concepts in order to construct new ideas, identify new relationships, and create new models of thinking and behavior. क्योंकि इसमें एक्सप्लोरेशन का फेज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और स्टूडेंट्स को गाइडेंस के साथ एक्सप्लोर करवाई जाती हैं चीज़ें, सो इसकी वजह से जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और एक्सप्लोर करने इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करने के लिए उनकी मोटिवेशन बहुत जो है वो हाई होती है. और उसके अलावा जो है ये मोटिवेशन तो इनकी हाई होती है और इसके साथ साथ जो है वो इनका बेसिक पर्पस जो है वो कॉन्सेप्ट्स को इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट न्यू आइडियाज़ यानी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये जो है बेस करता है ये अप्रोच, क्योंकि इसमें जो न्यू आइडियाज़ होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं स्टूडेंट्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ डिस्कवरी and identify new relationships
जितने भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट्स, एंड क्रिएट न्यू मॉडल्स ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर। और क्योंकि जब वो वंस दे आर एबल टू कंस्ट्रक्ट देयर न्यू आइडियाज़ एंड देन दे आर able to identify new relationships, then definitely those students are able to develop their own thinking and there will be a great change in their own behavior. Here are some features of guided discovery, and these are: the teacher must guide the students toward the discovery. The teacher must guide the students towards the discovery. यानी ऐसे नहीं हो सकता कि टीचर जो है वो ब्लाइंडली किसी चीज़ को डिज़ाइन करके और बच्चों को डिस्कवर करने के लिए उसके अंदर अकेला छोड़ दे, बल्कि टीचर की प्रॉपर गाइडेंस और गाइडलाइंस होनी चाहिए। ऐसे पॉइंट्स टीचर को शेयर करने चाहिए बिफोर डिस्कवरी जो है वो बच्चों को गाइड करना है और ट्रेन करना है कि उन्हें किस तरह से डिस्कवर करना है न्यू कॉन्सेप्ट को। सो टीचर की गाइडेंस के बगैर जो है वो गाइडेड डिस्कवरी नहीं हो सकती। प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट मटीरियल्स, ये भी टीचर के पार्ट पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अप्रोप्रिएट मटेरियल्स बच्चों को प्रोवाइड करे फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कवरी। अप्रोप्रिएटनेस जो है मटेरियल्स की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप गाइडेड डिस्कवरी को फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए मटेरियल्स, जब आप बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के लिए मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं तो वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए उस टॉपिक के साथ जो आप पढ़ा रहे हैं, और बच्चों के लिए अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए ताकि जब वो मटेरियल्स के साथ अच्छे से काम कर सकें और अपने कॉन्सेप्ट को डिस्कवर कर सकें। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है उसको कंड्यूसिव बनाना, दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स कि वो अपने क्लासरूम का एनवायरनमेंट इस तरह से कंड्यूसिव डिज़ाइन करें कि बच्चे उसमें ईजी फील करें और वो अपने जो उनको गाइडेंस दी गई है उसके मुताबिक अपने डिस्कवरी के प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकें। कोई डिस्टर्बेंस ना हो क्लास के अंदर, ऐसी इररेलेवेंट चीज़ें मौजूद ना हो जिससे बच्चा डिस्टर्ब हो रहा हो और उसको इंटरवेंशंस मिल रही हों, तो इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। टीचर को चाहिए कि वो ऐसा एनवायरनमेंट डिज़ाइन करे जिसमें बच्चे जो है वो बहुत ईजी फील करें और लर्निंग का एनवायरनमेंट हो जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर रहे हों। नेक्स्ट इज़ अलॉटिंग टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू डिस्कवर, बिकॉज जब आप फ्री हैंड बच्चों को देते हैं दे टेक टू मच टाइम, और इस चीज़ को टाइम के जो शॉर्टेज है उसको करने के लिए, कवर करने के लिए टीचर्स को जो भी टास्क उन्होंने डिस्कवरी का दिया है क्लास में उसके लिए प्रॉपर टाइम एलोकेट करना चाहिए। यहाँ पर यह है कि जो टाइम आप एलोकेट करते हैं वो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि उस गिवन टाइम के अंदर वेदर द स्टूडेंट्स आर एबल टू कंप्लीट दैट टास्क और नॉट। ये ना हो कि बच्चे जो हैं वो बहुत स्लो काम कर रहे हैं और आपने बहुत कम टाइम उनको अलॉट कर दिया है और एट द एंड यू फाइंड के बच्चे जो हैं उन्होंने दे हैव डिस्कवर्ड नथिंग और फिर आपको टाइम एक्सटेंड करना पड़े। तो उससे बेहतर है कि पहले ही आप बच्चों को गाइडेंस इतनी अच्छी दें और प्लस टाइम जो है वो अप्रोप्रिएट अलॉट करें, सफिशेंट टाइम जो है वो अलॉट करें ताकि बच्चे उसमें ठीक से डिस्कवर कॉन्सेप्ट को कर सकें। Next is it is the responsibility of the teacher to set the student up to make the desired discovery. That means कि जो एक because teacher knows well, इस मेथड में जो है वो टीचर की गाइडेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है और टीचर की गाइडेंस इस तरह से होनी चाहिए कि वो प्रोसीजर्स को इस तरीके से सेट करे या करवाए स्टूडेंट्स से कि जो डिज़ायर्ड डिस्कवरी है वो पॉसिबल हो सके कि उसको अचीव किया जा सके। ये ना हो कि बच्चे जो हैं वो खुद ही उसको किसी और डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं और एट द एंड आपको पता चलता है कि जो आपका डिज़ायर्ड कॉन्सेप्ट था वो बच्चों ने डिस्कवर नहीं किया, उसकी बजाय वो किसी और डायरेक्शन में चले गए हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो किसी एक कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच रहे। तो स्टार्ट से ही टीचर को चाहिए कि वो सेट करवाए टीचर्स स्टूडेंट्स को इस तरीके से उनकी एक्टिविटी को कि वो जो डिज़ायर्ड डिस्कवरी है उसको मीट कर सकें। The next characteristic is the teacher must provide all the necessary background knowledge to lead the student to the discovery. Background knowledge जो है वो बहुत important होता है। तो फर्दर जो एक्टिविटीज़ आप क्लास में डिस्कवर करने के लिए करवा रहे हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड बैकग्राउंड नॉलेज होता है वो रिफ़्रेश करवाएं डिस्कवरी की एक्टिविटी से पहले,
ताकि उस जब आप उस नॉलेज को रिफ़्रेश करवाएं तो बच्चे जो हैं वो उसको रिलेट कर सकें कि हमने इस एक्टिविटी के अंदर जो ऑलरेडी हमारे कौन से लर्नड कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने अप्लाई करना सीखना है, और ताकि वो इसको न्यू डिस्कवरी जब वो कर लेते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट जो है उसको जब लर्न करते हैं तो वो उसको अपने बैकग्राउंड नॉलेज के साथ फिट कर सकें और उसके साथ उसको रिलेट करके मेमोराइज कर सकें। Here are few steps of guided discovery learning. 3 steps हैं इस टीचिंग अप्रोच में, टीचिंग मेथड में. फर्स्ट इज़ एक्सप्लोरेशन, सेकंड इज़ इन्वेंशन एंड द थर्ड वन इज़ डिस्कवरी. एक्सप्लोरेशन के फेज़ में टीचर प्रेजेंट्स डाइवर्जेंट क्वेश्चंस एंड असेस द स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग देम एनवायरनमेंट फॉर डिस्कवरी. तो यहाँ पर बच्चे जो टीचर है वो बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस पोज करता है जो उसकी लर्निंग को प्रोवोक करते हैं, उसकी जो ऑलरेडी लर्निंग हो चुकी है उसको भी प्रोवोक करते हैं, और जो अपकमिंग लर्निंग होती है उसको भी जो है उसके लिए अपना ग्राउंड जो है उसको प्रिपेयर करते हैं. और इसमें टीचर को थ्रू क्वेश्चंस इस तरीके से बच्चों को असेस करना चाहिए, और उसका पर्पज़ ये होना चाहिए टीचर का कि वो बच्चों को डिस्कवरी के लिए एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें. और इस असेसमेंट के थ्रू, इन डाइवर्जेंट क्वेश्चंस के थ्रू बच्चे जो हैं वो न्यू टॉपिक, अपने न्यू कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. Second stage is of invention, and in this stage with the help of the teacher the students find the meaning and structure of the ideas. So यहाँ पर टीचर जो है वो बच्चों को क्योंकि ये गाइडेड डिस्कवरी है तो टीचर की गाइडेंस जो है वो थ्रू आउट 3 स्टेप्स में बच्चों के साथ साथ रहती है. जैसे एक्सप्लोरेशन के फेज़ में टीचर का रोल जो है वो डाइवर्जेंट क्वेश्चंस को पोज करना है, और बच्चों का काम जो है वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को एक्सप्लोर करना है. ठीक है. और जो इन्वेंशन की स्टेज है इसमें टीचर का रोल ये है कि वो बच्चों के जो उनकी मीनिंग्स हैं उनको जो कंस्ट्रक्ट अपने माइंड में मीनिंग्स को कर रहे हैं उनके स्ट्रक्चर को वाज़ेह करे, उसको एक्सप्लेनेशंस के थ्रू क्लियर करे. थर्ड स्टेप है डिस्कवरी का, और इस स्टेप में द चाइल्ड अप्लाइज व्हाट ही लर्नड इन एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेंशन स्टेजेस टू न्यू सिचुएशन. देखें, 2 ऊपर के जो स्टेप्स हैं उनमें बच्चों ने न्यू कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर लिया विद द हेल्प ऑफ द टीचर, और उसके बाद जो उन्होंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया है उसके मीनिंग्स और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेनेशंस के थ्रू उन्होंने कंफर्म किया है. और उसके बाद इन दोनों स्टेप्स में जो कुछ उसने लर्न किया होता है उसके लिए थर्ड स्टेप में टीचर उसको एक न्यू सिचुएशन प्रोवाइड करता है. उसके सामने एक न्यू सिचुएशन पोज की जाती है जिसमें जो स्टूडेंट है वो अपनी लर्न मटेरियल को अप्लाई करना सीखता है. Now we will discuss about the role of teachers and students in the guided discovery method. In this method of instruction, teachers provide students with an ample amount of time to engage in student-centered activities that focus on problem solving. तो इस मेथड में बेसिकली टीचर का रोल जो है वो बच्चे को अच्छी डिज़ाइंड एक्टिविटीज़ जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड हों, जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ इंगेज होकर काम कर रहे हों और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को अरेंज करना टीचर का काम होता है. टीचर्स टेक ऑन द रोल ऑफ कोच. तो बेसिकली देखें, कोच का रोल जो है वो आपको रूल्स, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाना होता है, बट और खेल को सिखाना होता है. तो उसी तरीके से कोच का जो रोल है यहाँ पर टीचिंग मेथड में टीचर का रोल एक कोच के तौर पर होने का मतलब ये है कि टीचर ने आपको लर्न नहीं करवाना, आपने चीज़ों को एक्सप्लोर खुद करना है स्टूडेंट्स ने, लेकिन टीचर का रोल ये होता है कि वो सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी जो गाइडलाइंस होती हैं वो प्रोवाइड कर रहा होता है, डू और डू नॉट्स के बारे में इन्फॉर्म कर रहा होता है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, किस तरह से करना है. और उसके बाद जो प्रोसीजर बच्चे स्टार्ट करते हैं तो उसमें टीचर मौजूद रहता है फॉर द गाइडेंस, बट ओनली फॉर द गाइडेंस. उसका मतलब ये नहीं होता
कि आप बच्चे के हाथ से चीज़ें लें और उसको खुद करके उसका आंसर लिखवाना शुरू कर दें, तो ऐसा इस टीचिंग मेथड में नहीं होता। कोच का रोल टीचर ने प्ले करना होता है। सो टीचर्स टेक ऑन द रोल ऑफ कोच using their professional judgment and expertise to decide when it is necessary to provide students with direct instruction and when it is appropriate to give them opportunities for explorations. So totally टीचर के हाथ में है, उसने इस चीज़ को डिसाइड करना है कि कहाँ पर उसने लेक्चर मेथड के थ्रू, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बच्चे को क्लैरिटी की तरफ लेकर जाना है या इंफॉर्मेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, और कब उसे स्विच ओवर करना है टुवर्ड्स एक्सप्लोरेशंस और एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चे को इन्वॉल्व करना है, और किस तरह से उसने एक्सप्लोरेशंस प्रैक्टिकली करवानी है बच्चों से। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, सब कुछ जो है वो टीचर्स ने खुद मैनेज करना होता है। For instance, if teachers see that students are struggling with a certain concept, यानी बच्चे को समझ नहीं आ रही, क्लास में कोई confusion हो गई है, ठीक है, in spite of the fact के टीचर ने ऑलरेडी बच्चे को बहुत अच्छी गाइडेंस भी क्लास को प्रोवाइड कर दी, बट स्टिल जो है वो क्लास स्ट्रगल कर रही है किसी कॉन्सेप्ट को इन्वेंट करने में, then teachers may take this as an opportunity for explicit instruction and design a lesson on a need to know basis। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो टीचर अगेन एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के लिए लेसन को प्लान कर सकता है, दोबारा से टीचर किसी नए तरीके से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करे और जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो, तो वो एक नया लेक्चर डिज़ाइन करके उसकी तरफ जा सकता है, और दोबारा फिर जो है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ की तरफ आएगा, डिस्कवरी की एक्टिविटीज़ की तरफ टीचर दोबारा उन बच्चों को लेकर आएगा, ताकि अगर उन्होंने लर्न कर लिया है तो वो उसको नई सिचुएशंस में अप्लाई कर सकें। नाउ हेयर आर सम चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग गाइडेड डिस्कवरी, क्योंकि गाइडेड डिस्कवरी जो है दैट इज़ अ ब्लेंड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड डिस्कवरी। तो डिस्कवरी एक्टिविटीज़ और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का जब ब्लेंड होता है तो उसमें बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। Implementing this guided discovery approach to learning in math can be challenging for educators, as this method requires skills that may be unfamiliar in traditional mathematics classroom. So have a visit के कौन कौन सी challenges face करने पड़ते हैं। Some of these skills include the ability to embrace uncertainty। तो इस मेथड की चूँकि नेचर ऐसी है कि हर वक्त सिचुएशन अनसर्टन रहती है। समटाइम्स ये होता है कि टीचर ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड की है बच्चों को, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए कि मे बी बच्चे जो हैं उन्होंने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो आपने गाइडेंस प्रोवाइड की है उसको प्रॉपरली ग्रैस्प ना किया हो, उसको लर्न ना किया हो कि टीचर ने क्या चीज़ समझाई है, और जब टीचर जंप इन कर जाता है टुवर्ड्स हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ तो वहाँ जाकर टीचर को अंदाज़ा हो सकता है कि बच्चों को लर्निंग नहीं हो रही। तो उस सिचुएशन में टीचर जो है उसको अपने डिसीजंस को अनसर्टन होते हैं, उसकी सिचुएशंस अनसर्टन होती हैं, और अनसर्टन सिचुएशंस के मुताबिक टीचर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस कर सके, उसको प्रॉपरली कैटर कर सके और उसको दोबारा से ज्वाइन कर सके कि किस तरीके से अब जो है वो बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। Now foster students decision making by balancing guidance and student independence। तो स्टूडेंट्स की डिसीजन मेकिंग को फोस्टर करने के लिए टीचर को चाहिए कि वो गाइडेंस और स्टूडेंट की इंडिपेंडेंस दोनों चीज़ों का ख्याल रखे, और इन दोनों के दरमियान में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ना तो टीचर की गाइडेंस जो है वो इतनी ज़्यादा हो जानी चाहिए कि बच्चे जो है उनको इंडिपेंडेंस ना रहे और वो टीचर के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो जाएँ और टीचर की गाइडेंस पर डिपेंड करना शुरू हो जाएँ, और ना ही इतना ज़्यादा स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए कि वो डिस्कवरी की बजाय जो है वो जो आपकी डिज़ायर्ड कॉन्सेप्ट डिस्कवरी है उसकी तरफ जाने की बजाय अपनी ही मर्जी के किसी कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाएं। तो एक बड़ा कीनली टीचर को इस तरफ ख्याल करना पड़ता है, एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है बिटवीन द टीचर्स गाइडेंस एंड स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग। तो डिस्कवरी लर्निंग जो है उसमें टीचर को बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए जो कि लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ हों, ताकि बार बार ऐसी सिचुएशंस में स्टूडेंट्स जाएं जिसमें लर्न वो कर सकें। नेक्स्ट इज़ मेंटेन फ्लेक्सिबल थिंकिंग
ठीक है। तो टीचर की जो थिंकिंग है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बार बार आपको स्विच ओवर करना पड़ता है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। कभी आपको प्रीवियस जो आपने स्टेप कर लिया होता है उसकी तरफ दोबारा आना पड़ता है। समटाइम्स ये होता है कि जो न्यू सिचुएशन आपने बच्चों को प्रोवाइड की है फॉर द पर्पज़ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लर्न कॉन्सेप्ट्स, तो आप ये फील करते हैं कि जब बच्चे उस न्यू सिचुएशन में गए हैं तो या तो वो बहुत ज़्यादा उनको डिफ़िकल्ट फील हो रही है या बहुत ज़्यादा ईजी फील हो रही है। तो दोनों सिचुएशंस में आपको जो न्यू लर्निंग की एनवायरनमेंट आपने बच्चे को प्रोवाइड की है या न्यू एक्टिविटी प्रोवाइड की है उसको चेंज करना पड़ता है। तो फ्लेक्सिबल थिंकिंग जो है वो टीचर ने अपनी मेंटेन करनी होती है। टॉलरेट पीरियड्स ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि डिस्कवरी लर्निंग है, प्रैक्टिकली बच्चे काम कर रहे होते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कवर कर रहे होते हैं, तो उसमें डिसऑर्गेनाइजेशन बार बार बच्चों की तरफ से हो सकती है, फेस आपको करना पड़े। तो उसके लिए वो आपको टॉलरेट करना है और उसको मैनेज भी करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइजेशन अगर गाइडेड डिस्कवरी क्लासरूम के अंदर होगी तो अगेन वो टाइम वेस्टेज होगा, और टाइम वेस्ट को रोकने के लिए आपको उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करवाना पड़ेगा। Research suggests that there are many benefits to adopting a guided discovery approach to teaching mathematics in the classroom, and some of these benefits include। So अब हम benefits को कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि guided discovery approach को अपनी मैथमेटिक्स की क्लासरूम में यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। ability to incorporate a balance between direct instruction and inquiry based learning। तो क्योंकि इससे टीचर्स की एबिलिटी इन्हेंस होती है, स्टूडेंट्स की भी एबिलिटी इन्हेंस होती है कि वो किस तरह से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और इंक्वायरी लर्निंग इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ किस तरह न्यू कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सकते हैं। इट मिनिमाइजेज वर्बल लर्निंग, तो बच्चों की वर्बल लर्निंग के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच है, तो इस वजह से वर्बल लर्निंग जो है उसको ये ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं किया जाता। गिव मोर टाइम टू स्टूडेंट्स टू असिमुलेट इन्फॉर्मेशन, इसमें टीचर्स को पॉजेज़ लेने पड़ते हैं, क्योंकि जब वो बच्चे नए इन्फॉर्मेशन को डिस्कवर करते हैं तो उनको हमें टाइम देना पड़ता है कि वो असिमुलेट कर सकें, प्रॉपरली उसको रिलेट कर सकें अपने प्रीवियस लर्निंग के साथ, और असिमुलेशन जो न्यू लर्निंग की असिमुलेशन है वो प्रॉपर हो जाए। तो स्टूडेंट्स को टाइम देना पड़ता है, और इसकी वजह से बच्चों की जो इन्फॉर्मेशन की असिमुलेशन है वो काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाती है। लीड्स टू हायर लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव थिंकिंग एंड लर्निंग। तो चूँकि ये इसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती हैं और प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन है लर्न थिंग्स का और न्यू कॉन्सेप्ट्स डिस्कवरी का, तो इससे बच्चे जो हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो उनकी डेवलप होती हैं, लाइक एप्लीकेशन स्किल्स हैं, इसके अलावा सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, एनालिसिस के स्किल्स जो हैं वो बड़ी अच्छी इसके थ्रू बच्चों की डेवलप हो रही होती हैं। तो जब बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स अपनी डेवलप कर रहे होते हैं। गाइडेड डिस्कवरी इनकरेज करती है डेवलपमेंट ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोलैबोरेशन। तो हायर ऑर्डर स्किल्स को भी ये प्रोमोट करती है, और बच्चे जो हैं वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली टीचर्स उनके अंदर इनकलकेट कर रहे होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को और कोलैबोरेशन को, क्योंकि बच्चे मिलकर काम करते हैं। इसमें डिस्कवरी लर्निंग में बच्चे इंडिविजुअली डिस्कवर नहीं कुछ भी कर पाते, उनके छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिसमें वो डिस्कवर कर रहे होते हैं, तो कोलैबोरेशन भी इसमें इन्हेंस्ड होता है। कोलैबोरेशन अमंगस्ट स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स टू लर्न विद एंड फ्रॉम ईच अदर। तो चूँकि इसमें स्टूडेंट्स और जो टीचर्स का रोल है वो भी एग्जैक्टली इस तरह का नहीं होता कि कोई बिल्कुल वन साइडेड रोल हो। इसमें टीचर्स जो हैं वो एक कोच का रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो कोच और स्टूडेंट्स के दरमियान में एक अच्छी कोलैबोरेशन डेवलप होती है और एक दूसरे से सीखने का जो है वो तरीका बच्चे सीखते हैं। इसके फर्दर बेनिफिट्स में है इंक्रीज्ड एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड प्रॉब्लम सॉल्व। तो एबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग जो है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं बच्चों में। स्टूडेंट्स में वर्क एट देयर ओन पेस एंड डेमोन्स्ट्रेट देयर लर्निंग इन डिफरेंट वेज, क्योंकि इसमें हर बच्चा जो है वो अपनी या जो हर ग्रुप होता है वो अपनी पेस पर डिस्कवरी लर्निंग को लेकर चलता है और टीचर की गाइडेंस के साथ, और जब वो अपने किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर लेते हैं तो उनको फ्री हैंड दिया जाता है कि वो अपनी जो उन्होंने लर्न कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट करें। तो उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन के वेज़ में भी बच्चे जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो जिस तरह से चाहें अपनी लर्निंग को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं और इन्जॉय करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन को। ability to incorporate students' interests and accommodate for specific needs।
तो ये चूँकि एक फ्री हैंड होता है, इसमें बच्चों को वो खुद से काम कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द टीचर गाइडेंस, और इस वजह से जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट्स होते हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इनकॉर्पोरेट टीचर कर सकता है। ऐसी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करें जो बच्चों की इंटरेस्ट्स के मुताबिक हों और बच्चे उसको इंजॉय करें, और इस तरह से भी एक्टिविटीज़ को प्लान करना चाहिए कि जिसमें बच्चों की जो स्पेसिफिक नीड्स हैं उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको अकोमोडेट किया जा सके। इट मीन्स कि आप बच्चों के ग्रुप को, किसी एक ग्रुप को अगर आपने बनाया है क्लास के अंदर, तो उसको कोई ऐसा टास्क नहीं दे सकते जो कि बच्चों की एबिलिटीज़ से अबव हो। एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनका टास्क होना चाहिए ताकि वो उसको प्रॉपरली डिस्कवर कर सकें। Now we will discuss a few disadvantages of this teaching method. टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज इसमें डिस्कवरी लर्निंग में बच्चों के लिए डिस्कवरी की एक्टिविटीज़ प्लान की जाती हैं, जिसमें फिर बच्चे जो हैं उनको बहुत ज़्यादा हम उनको टाइम बाउंड भी नहीं कर सकते। समटाइम्स ये होता है कि आप जिस तरफ डिस्कवरी को लेकर, एक्टिविटी को लेकर जाना चाह रहे होते हैं, बच्चे उस तरफ नहीं जाते और उनकी लर्निंग प्रॉपर नहीं हो रही होती, तो आपको दोबारा प्रीवियस स्टेप की तरफ जाना पड़ता है। सो उसमें फिर ये टाइम टेकिंग हो जाता है। डिफ़िकल्टीज़ टू स्लो लर्नर्स। अच्छा, यहाँ पर अब ये है कि जो अगर क्लास में जो बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं वो उसमें प्रॉपरली नहीं इनपुट अपना दे सकते, क्योंकि इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, और स्लो लर्नर्स चूँकि उन स्किल्स में वीक होते हैं तो उस वजह से उनको इसमें डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। टीचर्स आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो कि क्वाइट न्यू है और इसमें एक कॉम्बिनेशन है टीचर का रोल बड़ा इसमें क्रिटिकल है कि उसने कैसे स्विच ओवर करना है दो डिफरेंट अप्रोचेस में। तो इस वजह से टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए गाइडेड डिस्कवरी को क्लासरूम के अंदर यूज़ करने के लिए। अनटिल अनलेस टीचर्स जो हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होंगे तो फिर वो उसको इतना प्रॉपरली उसको नहीं करवा पाएंगे, टीचर स्टूडेंट्स की तरफ से फॉलो अप नहीं करवा पाएंगे, जिसकी वजह से जो डिस्कवरी लर्निंग का पर्पज़ होता है उसको वो मीट नहीं कर पाते। एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स डोंट शो अप इन रेगुलर अचीवमेंट टेस्ट्स। तो जो बच्चों ने वहाँ पर जो कुछ डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू सीख रहे होते हैं उसमें बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं। जैसे अभी हमने देखा कि रीजनिंग स्किल्स और थिंकिंग स्किल्स उनकी डेवलप हो रही होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं। तो डायरेक्टली इन स्किल्स को अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू जो है उनको असेस करना पॉसिबल नहीं होता। तो एकदम इसके जो बेनिफिट्स स्टूडेंट्स के ऊपर आते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं होते, और उनको शॉर्ट टर्म वे में आप असेस नहीं कर पाते। तो इस वजह से आपको फ़ौरन टीचर्स को ये असेस करना मुश्किल हो जाता है कि स्टूडेंट्स ने जो कुछ लर्न किया है इस बाय द यूज़ ऑफ दिस मेथड, तो उसको वो अचीवमेंट टेस्ट्स में शो नहीं कर पाते। यहाँ पर एक जिग्सा मेथड मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। दिस मेथड ऑफ गाइडेड डिस्कवरी वाज क्रिएटेड बाय चैपमैन in 2011 as a way or to flexibly implement inquiry based learning in mathematics। तो particularly mathematics के अंदर चैपमैन ने ये guided discovery के लिए एक मॉडल प्रेजेंट किया था। It takes the form of a jigsaw puzzle and includes all components of a standard inquiry cycle but is not linear and can be pulled apart and reorganized in a variety of ways with missing parts। तो इसमें कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन से कंपोनेंट को कहाँ पर फिक्स करना है। ये टीचर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो जिस तरह से चाहे इसके पार्ट्स को ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज कर सकता है, जब उसको वो चाहे वो इन्वेंट कर सकता है। This type of inquiry model is beneficial in mathematics as it allows educators to be flexible and incorporate direct instruction when necessary। तो टीचर के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा टास्क ये दूंगी कि आप इस जिग्सा मेथड को ख़ुद से सर्च करें और इसकी एक प्रॉपर डायग्राम आपको नेट पर मिल जाएगी, उसको आप देखें और अपने पास उसको ड्रॉ करें जिग्सा मेथड की डायग्राम को, और अब फाइंड आउट करें कि उसके कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो ऑथर ने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए हैं, और एज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स आप उसको कैसे रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। आप इस छोटी सी असाइनमेंट को करके आप मुझे व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं, और या जिस तरह से भी ऑनलाइन आप मुझे भेजना चाहें आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। Now we will briefly take a summary of this presentation.
इंक्वायरी इन मैथ में लुक डिफरेंट देन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इन अदर सब्जेक्ट्स। मैथ के अंदर इंक्वायरी डिफरेंट होती है क्योंकि मैथ के पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट होता है उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, कई क्वेश्चंस एक ही पैटर्न के ऊपर आ रहे होते हैं। तो इंक्वायरी जो मैथ के अंदर होती है वो कुछ डिफरेंट होती है। जैसे इंक्वायरी अगर आपने साइंस के क्लासरूम में करवानी हो तो दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, और उसके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें इस तरह की होंगी जो कि स्टूडेंट्स बड़े इंटरेस्ट लेकर करते हैं। लेकिन मैथ के लिए स्पेशली आपको ऐसी एक्टिविटीज़ फिर डिज़ाइन करनी पड़ती है जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट और उनके एबिलिटी लेवल्स को देखकर हम उनको डिज़ाइन करते हैं। Math generally requires more direct instruction, therefore a guided discovery approach is fitting. तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा इसमें मैथ के अंदर इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जब एक नया कॉन्सेप्ट देना होता है टीचर उसके बेसिक प्रिंसिपल्स रूल्स उनको इंट्रोड्यूस करवाता है, और उसके बाद जो बच्चे हैं वो अपनी गाइडेंस, टीचर की गाइडेंस के बाद जो है वो कोई नया उस फार्मूला का फिटिंग देख सकते हैं कि कौन सा वहाँ पर होगा और किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पॉसिबिलिटीज़ को देखा जा सकता है। तो प्रैक्टिकली हमें मैथ में इस तरीके से ये अप्रोच हेल्प कर सकती है। गाइडेड डिस्कवरी कैन बी यूज टू टीच ऑल स्ट्रैंड्स ऑफ मैथ, यानी मैथ में आपको पता है कि बहुत से डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं, ज्योमेट्री है, अलजबरा है, जो डिफरेंट बेसिक मैथमेटिक्स की स्किल्स होती हैं। तो किसी भी तरह का स्ट्रैंड मैथ का अगर आपने टीच करना है क्लास में तो उसके लिए यू कैन ईजिली यूज़ गाइडेड डिस्कवरी मेथड। नेक्स्ट इज गाइडेड डिस्कवरी प्रोमोट्स लर्निंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग विच लीड्स टू डीपर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जे कि हम ये समझें कि मैथ्स का एक क्वेश्चन टीचर ने सॉल्व करवा लिया और उस पैटर्न पे बाकी सारे क्वेश्चंस बच्चों ने सॉल्व कर लिए हैं तो दैट इज़ इनफ। बेसिकली मैथ जो है वो बहुत डीपर लेवल पर हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहा होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और रीजनिंग स्किल्स इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिश हो रही होती हैं। तो इस वजह से ये जब हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं थ्रू द यूज़ ऑफ गाइडेड डिस्कवरी, तो इससे मैथमेटिक्स की बड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती हैं। तो सरफेस लेवल का नॉलेज नहीं होता मैथ्स का जो गेन कर रहे होते हैं इसमें बच्चे, क्योंकि वो प्रैक्टिकली खुद भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो एक्सप्लोरेशन के थ्रू जब वो मैथ्स को सीखते हैं और फिर उसको न्यू सिचुएशंस में किसी भी फाउंड फार्मूला जो होता है उसको अप्लाई करके देखते हैं, तो उनकी उसके बाद जो लर्निंग होती है वो लॉन्ग टर्म लर्निंग होती है, और वो उस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा देर तक और ज़्यादा अच्छा कॉम्प्रीहेंड करते हैं और उसको याद रखते हैं। थैंक यू।